Pradeep sir, Abhinan sir, my colleague Dr. Sumit Chaudhary for Turning Point session. And the topic for today is actually very inspirational, and that is 7 habits of highly effective people. And we have before us one highly effective person too. And I quickly invite Abhinan sir for opening remarks. Over to Abhinan sir. Good morning to you all, kids, and hope everybody is healthy, safe, and doing better in this COVID time. And on this day, I am very much excited to invite one of our senior person in Cadila Pharmaceutical, S.C. Gupta sir. Gupta sir has been our Bhishma Pitama in field, and we can get a lot of ideas and inspiration from him. And it is our fortunate for Industrial University students to have Gupta sir with us. He is here to guide us. He has got lot of experience, and I can say that he is like our Dronacharya in the marketing field, and one can get lot of ideas and inspiration from him. Without wasting my time, I would like Gupta sir to take over the charge, and all the kids, please jump in to ask as many as questions, because Gupta sir is a big tree from which you can get lot of inspirations and ideas. Thank you. Thank you, Abhinan sir. We have opening remarks from Pradeep sir also, and then we will have introduction from student body. So over to Pradeep sir. Okay, thank you so much, sir, for Abhinan sir, for creating a wonderful context for this session. Dear friends, my dear students, I have just tweaked the session. So till yesterday, we were thinking of speaking on seven habits of highly effective people. So ultimately, all habits, result into the winning. Why we inculcate different habits? हम बाकी habits अपने में क्यों रखते हैं? आदतें हम क्यों डालते हैं? So अल्टीमेटली हम जीत सकें. So मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कल शाम को कि क्यों ना हम सर इस सेशन को थोड़ा सा ट्विक करें, इसको इवॉल्व करें. तो सर हैज एग्रीड कि टुडे वी विल स्पीक ऑन द विनिंग फॉर्मूला of 5Ds. So today, sir is going to speak on winning formula of 5Ds. Dear friends, I'm very happy to share. In last 6 months, this company has grown up by 6 ranks. So हम कैसे 6 रैंक बढ़ गए, कैसे इस कोविड टाइम में जब सब जगह पे मतलब निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, लोग मतलब बहुत परेशान है, और कैडिला जैसी कंपनी ग्रो कर रही है, राइट. सो कुछ तो होगा हमारे पास. सो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये उनका ही आइडिया है, ये सब उनका ही है जो कुछ है. सो सर से मेरा एक रिक्वेस्ट था कि सर क्यों ना हम उस पर बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोग जब आप डिसअपॉइंटमेंट या निराशा में हैं तो कुछ हम ऐसा बात करें कि ऐसे टाइम पे भी आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, हाउ टू टर्न द डिसएडवांटेज इनटू द अपॉर्चुनिटी. सो सर इज द राइट पर्सन टू स्पीक ऑन दैट. And as every sir has already told, Abhinan sir, ki he is the stalwart, he is the brick tree, he is the pitama of this industry. So हम लोग जो सुनते थे सर की बचपन से कि ज्यादातर लोग, हम लोग जैसे हमारे फादर भी थे सर, एक ही कंपनी में काम करते थे. हम लोग वैसे नहीं रहे लॉयल उसके लिए. और हमको मेरे पापा कहानियां भी सुनाते थे कि अगर एक पेड़ को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाओगे तो शायद वो ग्रो कर जाए, दूसरी से तीसरी जगह लगाओगे तो उसके ग्रो करने के चांसेस कम होते जाएंगे. तो जैसे जैसे आप पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह लगाते जाओगे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. अगर आपको उस पेड़ का अच्छे से अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपको उस पेड़ को एक ही जगह रखना पड़ेगा. सो आई थिंक सर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है उस चीज का. तो सर आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता इस टॉपिक पे बात करने के लिए. सो आप स्टार्ट करें. इसके पहले आई रिक्वेस्ट नम्रता जी टू इंट्रोड्यूस अवर स्टूडेंट बॉडी टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ सर. थैंक यू प्रदीप सर, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा बैकग्राउंड भी सेट किया स्टूडेंट्स के लिए. एंड दैट इज़ वाई रिक्वेस्ट हैज कम कि थोड़ा सा हिंदी में भी बोलें. Sure. तो थोड़ा सा सबको समझ में आएगा. एंड बिकॉज द लेवल वी आई मीन आर लुकिंग फॉर should be student reach also, for student reach. So now without delay I invite Harsh Shah. Sir Chaudhary, Sumit sir, if you can unmute Hard Shah, who will be introducing uh, Gupta sir. Good. Hard, Hard, Hard Shah. Yes, ma'am. Yeah. Good morning, everyone present here, respected deans, Abhinan sir, faculty members, guests, and my dear friends. My name is Harsha, and I am a student from Department of Computer Science and Engineering. I'm glad to have this opportunity to introduce our guest speaker, Mr. S.C. Gupta. Mr. S.C. Gupta is the president in branded business at Cadila Pharma. He is a seasoned pharma business
professional with over 30 years of experience. He transformed Cadilla's generic business into a profitable venture worth 300 crores and successfully managed other important business. Now I would like to invite Gupta sir to address us on 7 habits of highly effective people. Okay. Thank you, Harth. Sir, it's your spotlight turns to you now. And over to you, sir. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Namrata. Thank you, Pradeep. Thank you, Abhinan and Harsha, who just introduced to me. Thank you for inviting me and giving me this opportunity to address the budding students who are looking for a great future ahead. And they are fortunate, I must say, to have been studying in an institute, in a university like Indrashil University, which is associated with a company like Cadila Pharmaceuticals. And the Cadila Pharmaceuticals started by our founder chairman, Shri Indravadan Ambalal Modi ji, which I am sure all your students would have by now understood. How our founder chairman has helped bring this company from a very small company to what it is today as a conglomerate. As a budding students, looking forward to bringing and making a great future for them, it's very essential to know that where they are currently, what can they learn from there? As I said, they are fortunate to actually have got admission and studying in a Indrashil University, which is associated with Cadila, who was built by our founder chairman. If the students are clearly listening to me, I will like them to pay full attention to this, that वो जो हमारे फाउंडर चेयरमैन सर थे, उन्होंने जब ये कंपनी शुरू की, वो अकेले थे, बस only person, and उनकी वाइफ श्री शीला बहन. That is how this university name also, इंद्रवदन अंबालाल मोदी और शीला बहन. ये इंद्रवदन अंबालाल मोदी जी हमारे फाउंडर चेयरमैन और शीला बहन दोनों इस कंपनी के सबसे पहले एम्प्लॉई थे. वो दोनों ने एक कमरे से ये चालू किया काम, और एक कमरे में वो शीला बहन जी मेडिसिन को पैक करती थी, और हमारे फाउंडर चेयरमैन सर इंद्रवदन अंबालाल मोदी जी वो मेडिसिन जो पैक करती थी शीला बहन, वो लेके साइकिल पे पीछे बांधते थे, और फिर वो गली गली जाके, बाजार में जाके, दुकानों में जाके उसको बेचते थे. अब ये अंदाजा लगाइए, जिस कंपनी में आज आप एसोसिएटेड हैं, जिसकी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड कितनी छोटी थी, और आज वही कंपनी, इसको कंग्लोमरेट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें बहुत बड़ा एक बिजनेस घर है, जो कि सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करता, लेकिन पूरी वर्ल्ड में ऑपरेट, मोर देन 100 ऑड कंट्रीज हम लोग ऑपरेट करते हैं. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज आई मैं रिपीट करता हूं कि आप एक बडिंग स्टूडेंट्स हैं, और आपको एक भगवान ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आप इंद्रशील जैसे यूनिवर्सिटी में आ गए, जहां पे ये फाउंडर चेयरमैन साहब ने ऐसे काम किया. इसका मतलब आपको एक अच्छी एग्जाम्पल सेट हुई, आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में आगे सक्सीड होना है, तो सिर्फ क्वालिफिकेशन, सिर्फ एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है. एक एटमॉस्फेयर, एक उसका जुनून, एक कोई पद चिन्ह पे चलने वाला आपके सामने अगर दिखे, तो उसके पद चिन्ह पे अगर आप चलेंगे, तो जो एजुकेशन आपने गेन की, उसका आप भरपूर फायदा उठा सकेंगे. तो ये फाउंडर चेयरमैन साहब की जो मैंने एग्जांपल बताई, छोटी सी एक कमरे से इतनी बड़ी कंपनी, इसका सार है ये चाहे आप उसको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बोल दीजिए, चाहे आप फार्मूला, विनिंग फार्मूला बोल दीजिए, आप 5 Ds. सक्सेस
तभी मिलेगी अगर हमने वैसा काम किया जैसे हमारे फाउंडर चेयरमैन सर ने किया और एक कमरे से कंपनी को इतना बड़ा बनाया। वो क्या गुर मंत्र हो सकते हैं, वो क्या ऐसी खासियत हो सकती है, वो ऐसी क्या क्वालिटी हो सकती है, वो ऐसी क्या चीज है जो इतने से इतना बड़ा बना देती है। जबकि इंसान तो बहुत होते हैं, एम्बिशन तो बहुतों की होती है, लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर सकते हैं, या क्या ऐसा कोई हर कोई करता है? नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो आपको मिली। इंद्रशील यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना और ऐसे फाउंडर चेयरमैन की एक कंपनी की एग्जाम्पल सामने होना, जिससे सीख लेके अब आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ना चाहिए। अगर आई विश कि हमारी ये सेशन इंटरैक्टिव होती, मैं आपको देख सकता और मैं आपके साथ बात कर सकता, तो मैं जानना चाहता हूं, अगर आप जहां भी हैं, मुझे आवाज आए चाहे ना आए, आप अपने में उसके आंसर दो, अपने में उसके क्वेश्चन करो, अपने में फिर से उसके आंसर लो मेरी बात के साथ साथ। तब एक एहसास होगा आपको कि आपको क्या करना है। अगर मैं अब यहां से पूछूं आपसे कि आप में से कोई ऐसा है जो कल को बड़ा बनने के सपने नहीं रखता है? आप यहां इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई एमएससी फार्मा कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहे हैं। यहां से आप अगर आए यूनिवर्सिटी में तो सोच के आए कि पढ़ेंगे। वो एक बचपन से हमें सिखाया जाता है, माँ बाप भी बोलते हैं, दुनिया भी बोलती है, कहीं भी जाओ पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये सुना है। तो इसलिए वो कहावत सच भी है, हालांकि उसे थोड़ा बहुत टाइम के साथ साथ बदला जा सकता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है, ताकि ओवरऑल एज ए ह्यूमन बीइंग अ फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग बने। सिर्फ पढ़ाई भी, खाली पढ़ाई भी, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो भी सफिशिएंट नहीं। यू हैव टू हैव ऑल टाइप ऑफ क्वालिटीज। तो इसलिए अगर मैं ये पूछता हूं फिर से कि आप में से कोई ऐसा है यहां पे बैठा हुआ जो इस यूनिवर्सिटी में या बचपन से लेके जो पढ़ाई करता आया, जिसके दिमाग में अभी ये नहीं है कि मैं यहां से निकलूंगा और कल को मैं एक बहुत बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा आर्किटेक्ट नहीं बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा किसी कंपनी का चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता हूं, और बहुत सारे सपने और बहुत सारी ऐसी आशाएं इच्छाएं आप में से कोई है? मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है में डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा है कि कुछ नहीं करना चाहता तो चैट बॉक्स में डाल सकता है। नहीं, हाँ तो आप डालो, चाहे जैसे मैंने बोला आपस में जवाब दो एक दूसरे को, अपने मन में जवाब दो इसका। लेकिन मैं समझ सकता हूं, मैं अपनी जो इधर की होती है ना एक तीसरी आंख है, वो वाली आंख से मैं देख सकता हूं कि किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, अंदर से भी आपने हाथ नहीं खड़ा किया, क्योंकि हर एक के मन में इच्छाएं हैं, हर एक के मन में इच्छाएं हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। आई डोंट नो आप लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते हो कि नहीं देखते हो। अगर आप में से कोई देखते हैं या जिन्होंने भी देखा होगा तो पीछे के 2-3 एपिसोड में ही 2 लड़के ऐसे आए। एक लड़का ऐसा आया जो यूपी के किसी गांव से आया, और वो लड़का बताता है कि उसके घर में लाइट नहीं है, लाइट, इतने पैसे नहीं है, गांव में लाइट है लेकिन उसके घर में लाइट नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कर सके। एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग, खाने के लिए इतना वो है नहीं, पूरे की पूरी कमाई उसके पास सिर्फ 3000 कुछ की है जिससे घर चलाना है।
लेकिन वो लड़के की इच्छा है, तो उसके बावजूद वो खेतों में जाता है, काम करता है, सब करता है, वो पढ़ाई करता है। और वो बताता है कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मैंने देखा है कि उसके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, चाचा ताया वगैरह, जो खेतों में मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन अंत में उनको वो सुख, वो पैसा वो नहीं मिल पाता है जिससे कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके या अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाए। तो वो लड़का कहता है मैंने पढ़ाई की, अगर मेरे को मन में बहुत इच्छा है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में करूं, देखने में, सुनने में, बात करने में उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं ठीक से आती है, जो भी, पर उसको पढ़ाई करने का जज्बा है, इसलिए कि उसको इस बात का एहसास है कि अगर वो पढ़ेगा, अच्छा करेगा, तो कल को उससे उसका फायदा होगा। लेकिन फायदा क्या होगा? उसकी इच्छा है मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहता हूँ। और ऐसा ही एक दूसरा भी आया, वो भी ऐसे ही है, उसके बिल्कुल वो चाय की दुकान पे काम करता है, बचपन से लेके एंड तक सिर्फ चाय की दुकान पे ही काम करता रहा, क्योंकि उसकी माँ चाय की दुकान पे काम करती, वहीं पला बड़ा, लेकिन वहीं पे बैठे 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 पढ़ाई करता रहा, कोशिश करता रहा, हिम्मत करता रहा, और वो भी चाहता है कि कल को मैं बनूं। और उनमें से दोनों, वो जो पहला लड़का है वो 50 लाख रुपया जीत के गया, just because of knowledge, just because of his ambition, the desire। और उसकी बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी कन्विक्शन से ये पक्का लगता है कि वो लड़का बन ही जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपसे जो सवाल पूछा कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो बड़ा नहीं बनना चाहता? मुझे नहीं दिखाई दिया, बट आई एम 100% नहीं, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, हर एक की इच्छा है। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या सिर्फ इच्छाएं रखने से या डिजायर रखने से कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सभी बड़े बन सकते हैं या बन जाते हैं? हाँ या ना? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रदीप भाई गर्दन ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है आप सभी कोई ऐसी 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 गर्दन कर रहे हैं, नहीं हो सकता। एहसास है आप सबको कि मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी आगे बढ़ने, नहीं तो कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने फाउंडर चेयरमैन सर की मैंने दी, वो यही है कि एक कमरे से बहुत बड़ी कंपनी, दोनों ने, वो चेयरमैन से हम लेसन जो सीखे वो यही कि एक तो दृढ़ संकल्प रखिए कि मुझे जो करना है सो करना है, और फिर वो दृढ़ संकल्प लेके रात दिन जुनून के जैसे उस काम के पीछे लग जाए तो लग जाए। फिर उसके बाद रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी तो आएंगी, लेकिन आपका जो दृढ़ संकल्प है उसे कोई हटा नहीं सकता, कोई उसको धक्का नहीं मार सकता, कोई उसमें चोट नहीं पहुंचा सकता, सिवाय एक आदमी के, सिवाय एक आदमी के। और वो आदमी कौन है? अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, आप में से कईयों को इस बात का एहसास हो गया होगा कि वो एक ही आदमी है, वो है मैं खुद। वो शोले पिक्चर देखी थी आप लोगों ने? बहुत पुरानी पिक्चर, आप मेरे ख्याल में 18-20 साल के लड़के होंगे तो शायद बहुत, उससे तो देखी हो ना देखी हो तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर देखी हो और मौका मिले तो वहां पे एक था गब्बर सिंह करके, गब्बर सिंह। तो वो हमेशा बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा बदमाश है, क्यों प्रदीप जी? तो वो हमेशा बोलता था अगर कोई किसी को, मेरे को कोई कर सकता है कुछ, गब्बर खुद, गब्बर को, तो वो खुद गब्बर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप अगर आपको अपनी जो लाइफ की एम्बिशन है, अपनी जो लाइफ की गोल है, जो आप बड़ा बनना चाहते हो, और बनना चाहिए, एम्बिशन रखना चाहिए, सपना लेना चाहिए, ये भी पक्की बात है।
बिना सपना देखे कभी सपना पूरा होता नहीं, और सपना देखना ही चाहिए। अगेन हमारे जो फाउंडर चेयरमैन सर की एग्जांपल में इससे सपना देखने से आता है, हमारे गुजरात की एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन थे धीरूभाई अंबानी जी, आप सबने उनका भी नाम सुना है, उनके बारे में जाना होगा, उनकी एक मूवी भी आई थी। उन्होंने भी, अगर मूवी भी हो तो उनका भी ये एक, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे ज्यादा, 10-12 क्लास, 10 क्लास भी नहीं शायद पास किया था, पर उनका एक बात जो हम सबको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि सपने देखो, सपने देखना बहुत जरूरी है, और सपने देखो तो तभी पूरे होते हैं। तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस बैकग्राउंड, अगर आप सब जो आप कह रहे हैं कि हम बड़ा बनना चाहते हैं, और आपको ये सब मौका मिला है जो है इंद्रशील यूनिवर्सिटी में, ऐसे एसोसिएशन जैसी कैडिला जैसी कंपनी के साथ फाउंडर चेयर, उससे एक लर्निंग हर समय। आई होप, आई डोंट नो डॉक्टर नम्रता, whether have our chairman's pictures around in the Indrashil University. It is there, sir. There are some messages here and there of the chairmans. They are messages which are like wonderful messages, and if people, students going around, if they're able to have those, they must be able to imbibe those kind of habits in them all the time. हर समय उनको ये ध्यान में रहेगा, तो पढ़ाई करते समय, पढ़ाई करते करते, खेलते खेलते, हर समय वो एक जज्बा दिमाग में, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूं तो क्यों कर रहा हूँ, खेल रहा हूं तो क्यों कर रहा हूँ, अपने आप को मैं काबिल बना रहा हूं तो क्यों बना रहा हूँ, उसके लिए बाद में जब मैं यहाँ कॉलेज से जाऊंगा तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या अपने में चेंज लाऊंगा, क्या अपनी में हैबिट्स में बदलाव लाऊंगा, क्या अपनी अपने कल्चर में, सोच में बदलाव लाऊंगा, जिससे कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी बन जाऊंगा। ये बात तो पक्का है। अभी आप लोगों ने बोला ये तजुर्बा, वो तजुर्बा, द्रोणाचार्य पता नहीं क्या क्या मुझे बता दिया। अब पता नहीं, मुझे लगता है वो मेरे सफेद बालों को देख देख के ये सारे तगमे मुझे दे दिए उन्होंने, बट एट द सेम टाइम इफेक्ट है कि ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो स्ट्रगल्ड थ्रू माय लाइफ। आई हैव आल्सो स्ट्रगल्ड थ्रू, आई आल्सो स्टार्टेड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक जो सबसे नीचे की पोजीशन होती है, एंड विद गॉड्स ग्रेस टुडे आई एम, जो एक डिजायर होती है हर एक की, आई एम एबल टू हेड द कंपनी एज ए प्रेसिडेंट फॉर द टोटल ब्रांडेड फार्मा बिजनेस। सो आई आल्सो, ऑफ कोर्स, खाली किताबी बात मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी कोई बढ़ाई करना चाहता हूँ या ये बताना चाहता हूँ ये मैंने अचीव किया, ये बोलना चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए अगर इन्होंने, प्रदीप भाई ने, डॉक्टर नम्रता ने मुझे मौका दिया है ये बात करने के लिए आपसे, तो मैं दिल से, ईमानदारी से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमें भी अपना वो वक्त याद आता है जब हम भी स्टूडेंट थे, हमें भी कभी कोई मौका मिलता था, जैसा मौका ढूंढते थे, कोई ऐसा मिले जो हमें आके लाइफ की रियलिटीज बताए, हमें आईना दिखाए और हमें सही रास्ता दिखाए, ताकि हम आगे जो करना चाहते हैं कर सके। With that feeling, therefore I'm sharing कि जब मैं आपको फाउंडर चेयरमैन सर की एग्जांपल बता रहा हूँ, या मैं धीरू भाई की बात बताई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत करेंगे, सपना देखेंगे तो सफल होता है, जरूर होता है। और मैं बताया कि हम भी ऐसा ही, इसलिए कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हकीकत है, ये हकीकत है, यो मैंने भी टेस्ट की हुई, मैंने भी ऑब्जर्व की हुई, मैंने भी उसको आजमाया हुआ है। मैं ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर मेहनत करेंगे और सही तरीके से सोच के समझ के करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ये हो नहीं सकता। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर हम सपना देखेंगे और सही सपना देखेंगे और उस सही सपने के ऊपर लगातार काम करेंगे, अमल करेंगे, तो वो सपना पूरा नहीं होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार
नहीं, because of this. Therefore, when I'm saying this, I want each one of you to trust me in this, believe in this, and develop that confidence in you कि हम जो कह रहे हैं वो हकीकत है, और उसका एक एक चीज के ऊपर अमल करो तो you will be most successful. That is my, and I have a sincere desire, as I told you, the moment Pradeep said कि these are budding and turning point and all, sincere desire कि अगर आज की बात के बाद आप में से सभी लड़कों में, मुझे विश्वास है कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो कोई चीज तय कर ले और उसको अजमा ना सके, कर ना सके. सिर्फ वही आदमी नहीं कर पाएगा, और कौन उसको इफेक्ट करेगा? वो खुद. इसलिए मैं पक्का, I don't know, अभी मैं देख रहा हूं about 75 students are watching, or how many people are watching, I can see from the, मेरे मन से आवाज निकलेगी, मेरे मन से दुआ निकलेगी कि ये 75 के 75 अभी मैं जो आपको 5 हैबिट्स बताने जा रहा हूं, और मेरे फर्दर मेरे सेल्फ की एक्सपीरियंस के बाद क्रिएट की हुई, कोई किताब से ली हुई नहीं है, कोई कहीं के नहीं, अपने एक्सपीरियंस की ली हुई है. अगर आप सब वो 5 हैबिट्स को इम्बाइब कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके जो नॉलेज गेन किया हुआ, आपका जो एक्सपीरियंस जो गेन किया हुआ, और प्लस जो आप अचीव करना चाहेंगे उसके कारण आपको अचीव ना हो सके. टेक इट फॉर राइट, दिल में लिख लीजिए इस बात, पक्का तय कर लीजिए. ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट प्रदीप टू share that screen of 5 Ds of winning formula. Meanwhile, while he's doing, Dr. Namrata talked about 7 habits of highly effective people. That is what, but we thought of not, but because those 7 habits are slightly larger, slightly broader, slightly bigger, you know, but they're all part of this. But as a budding people, if, nahi, a pehla wala dikhao na, first slide. हाँ ये, keep it here. So अगर वो this first, let them develop these 5 Ds of the. सर हम आपका अनुभव ज्यादा पसंद करेंगे डेफिनेटली सर, क्योंकि आप जीवंत हमारे सामने हैं, आपका एग्जांपल. थैंक यू सर. Yeah, sure. So therefore we'll talk about friends about this 5 Ds of winning form. Now what does it say? Very simple. That, what is that? I deserve to win. Tell yourself, I deserve to win. I desire to win. I am determined to win. I dedicate to win. And I follow discipline to win. These are 5 Ds. Now we'll go a little more deeper into that. Okay, after all, what is this? You know, I talked to you about, again, keep on referring to our founder chairman. अगर आपके इंद्रशील यूनिवर्सिटी में कहीं भी पिक्चर दिखे, तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ उनकी अगर कहीं लिखा है कुछ या नहीं लिखा है, अगर चेयरमैन की पिक्चर देखी, I had, by the way, the opportunity of spending time with our founder chairman. I am very happy to share with you, Dr. Namrata and all the students. जब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लकी हो, आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, जो यूनिवर्सिटी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, कैडिला जैसी, जिसके फाउंडर चेयरमैन सर इंद्रवदन मोदी जी थे, जिनसे सीख सकते हैं, वो इसलिए कि because nearly 10 years or so I have spent with him, because I worked in this company today, and this December on 15th I will complete exactly 22 years of working in this company. So I'm happy to have worked together and grown, but I had also very fortunate to have spent time with the founder chairman and had a great learning. And perhaps these 5 Ds are imbibed after watching him, after spending time with him closely, and that's how they have come. So therefore, they are the real Guru Mantra for anybody to succeed. So let's see what are these. Let's come to the first one. I deserve to win. Very simple. Gentlemen, friends, अब सब हमेशा चाहे आप छोटे हैं, चाहे आज बड़े हैं, चाहे आप इस पोजीशन में हैं, चाहे उसमें, भगवान ने जब आपको पैदा किया ना, सब इंसानों को पैदा किया, तो सबको एक जैसा ही पैदा किया. छुटका सा बच्चा,
कोई उसमें मेल भाव, कोई वैसा कुछ नहीं है. ऑल नेकेड दे कम ऑन द अर्थ लाइक ए स्मॉल लिटिल चाइल्ड. कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं. भगवान ने सबको जब पैदा कर दिया तो उसके बाद भगवान ने सबको एक जैसा ही मौका देने का प्रावधान रखा, प्रोविजन रखा. इसलिए कभी भी नेवर एवर थिंक कि आपको पैदा किया भगवान ने तो ऐसे ही छोड़ दिया. आप पक्का रखिए कि भगवान ने जब मुझे पैदा किया है तो आई ऑल्सो डिजर्व to win like everybody else. I have the equal. ये आपको मानना पड़ेगा, दिल से मानना पड़ेगा that I deserve to win. Deserve का मतलब I hope everyone understands. कैसे बोलेंगे इसको प्रदीप? I deserve to win. इसको जरा ट्रांसलेट करो तो हिंदी में. मैं इसके लायक हूं सर एक्चुअली. हाँ, नहीं, लाइक से भी ज्यादा डिजर्व. डिजर्व इज नॉट लाइक. सो मेरी क्षमता है. हाँ, क्षमता नहीं, मैं डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करता हूँ. मेरा भी हक है. हक है. हक है. मेरा हक है. मेरा ये हक है. भगवान ने जब मुझे पैदा किया है ना, तो मेरा ये हक है कि मैं जीतूं, लाइफ में अचीव करूं. मेरा हक है लाइक एवरीबॉडी एल्स इन दिस अर्थ. अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन गया तो मेरा भी हक है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं. ये मेरे ऊपर है. अगर कोई प्रेसिडेंट है तो मेरा भी हक है, मैं भी बन सकता हूं. मैं डिजर्व करता हूं, डिजर्व करता हूं, डिजर्व करता हूं, करता हूं. देयर इज नो डिफरेंस. सो हर कोई इस बात को गांठ बांध लीजिए. सबसे पहली बात कि मैं डिजर्व करता हूं, कोई दो मत नहीं है. And then once you decide that, when you आगे करो प्रदीप. या तो अगर आप डिजर्व करते ही हैं, तो अगर आपका हक है और आप अपना हक छोड़ दोगे, आप अपना हक पाने की कोशिश नहीं करोगे, उसकी इच्छा नहीं रखोगे. भगवान ने तो सबको दी. So therefore the second D must always have I desire to win. Means I have the desire to win. Now प्रदीप जी इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? I have the desire to win. कि मुझे इसमें इच्छा आएगा. इच्छा शक्ति आएगा सर. इच्छा शक्ति. मेरे मन में पूरी इच्छा शक्ति कि मैं भी जीतूं. मेरी ये इच्छा है, मेरे दिल से इच्छा है. डिजायर, मेरी दिल से इच्छा है कि मैं जीतूं, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं. मेरा हक है और मेरी इच्छा भी है, दिल से इच्छा है कि मैं जीतूं. तो दिस शुड बी योर सेकंड डी which you must imbibe thoroughly and believe. And what about third D? And third, once you have, जब आप मानते मेरा हक है और मेरी दिली इच्छा है, then you have to tell yourself, फिर आपको बोलना है I am determined to win. I am determined to win. मतलब दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती. अब मेरे मन में इतनी डिटरमिन्ड, मतलब संकल्प, संकल्प, दृढ़ संकल्प. हाँ, दृढ़ संकल्प. डिटरमिन मीन्स संकल्प लिया है मैंने दृढ़ संकल्प. एक्चुअली संकल्प से भी ज्यादा दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरा हक है, क्योंकि मेरे मन में दिली इच्छा है. इसलिए मैंने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, है ना. एंड देन फोर्थ डी, डेडिकेट. I dedicate to win. Then you have to tell कि मैं हक है, मेरा हक है कि मैं जीतूं लाइफ में, और मेरे में दिली इच्छा है कि मैं जीतूं, और अब मैंने तय भी कर लिया है कि मैं जीतूंगा. And for that I will dedicate myself to win. I will dedicate myself to win. Now what is dedicate? समर्पित सर.
समर्पित, वेरी गुड, अरे तुम्हारी हिंदी बड़ी जबरदस्त। थैंक यू सर। So therefore, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं टू विन। नो, समर्पित हिंदी में सुनने में अच्छा लगा, बट द मीनिंग मेरा ख्याल है, अगर आप सब लोग समझो, 72 पीपल हु आर वाचिंग, समर्पित कर देना, डेडिकेट कर देना टू विन मीन्स देन मेरे को रात दिन सोते जागते खाते पीते कुछ भी और ध्यान में नहीं है सिवाय इसके कि मैंने जो गोल सोचा है जीतने के लिए, मैं वो जीतूंगा ही जीतूंगा, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर दैट। और हर समय मेरे दिमाग में वो एक ऑब्सेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सेशन, मीन ऐसा छाया हुआ है मेरे दिमाग में कि जब भी मैं कुछ भी करता हूं, कोई भी काम करता हूं, वो हमें उसी तरफ के लिए करता हूं, उसी गोल के अचीव करने के लिए करता हूं। डेडिकेट कर देता हूं अपने आप को, डेडिकेट, पूरा समर्पित कर देता हूं, खुद को झोंक देता हूँ, खुद को झोंक देता हूँ, खुद को झोंक देता हूं, है ना। जैसे भगवान को भी पाने के लिए बहुत सारी एग्जाम्पल है, चाहे वो रावण की क्यों ना हो, रावण के जैसा कहते भक्ति नहीं दिखाई तो समर्पित कर दिया था आपने और उसको भगवान जी मिल गए। ऐसे कोई भी, दैट इज काइंड ऑफ है समर्पित कर देना, 4th D। एंड 5th D, डॉक्टर, am I exceeding my time? Dr. No, sir. No, sir. Am I within that 40-50? Yes, sir. Sir, with 12:30 we can be. No, okay, but another. So finally, the 5th D, that is कि मैं, अगर मेरा हक है मैं जीतना, और मेरी डिजायर भी है, मेरी इच्छा शक्ति भी है कि मैं जीतूंगा, और मैंने उसको डिटरमिन कर लिया है कि मैं जीतूंगा, मैंने तय कर लिया है, और अब मैंने अपने आप को समर्पित भी कर दिया है, तो चारों चीज करने के बाद 5th D, डिसिप्लिन, अगर मैं ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करूंगा, वो चारों की चारों आपकी बेकार हैं, फालतू हैं, यूजलेस हैं, कोई फायदा नहीं होगा। सो डिसिप्लिन को हिंदी में कैसे इसको? अनुशासन सर, अनुशासन, स्व अनुशासन, स्व अनुशासन, स्वयं डिसिप्लिन। अमिताभ बच्चन की हिंदी बड़ी अच्छी। तो अनुशासन, डिसिप्लिन, विन। इन अदर वर्ड्स, भैया जैसे मैंने बोला आप सबसे कि आपकी चारों D है आपके पास जबरदस्त, लेकिन डिसिप्लिन नहीं रखा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना, अनुशासन का मीनिंग क्या है, इस पे मैं थोड़ा सा आप सबसे, क्योंकि अगर मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं और अगर आप इसको समझ नहीं पाते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट, और वो फेल होते हैं, वो फेल हो जाते हैं एक्चुअली। उनको एहसास नहीं होता इस बात का कि मैं फेल कैसे हो गया। मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं तो मानता था कि मैं तो जीत जाऊंगा, मेरे तो अंदर में इच्छा शक्ति थी, मैंने तो डिटरमिन किया था बिल्कुल, और मैंने तो अपने आप को समर्पित भी कर दिया, फिर मैं कैसे फेल हो जाता हूं? डिसिप्लिन, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है। डिसिप्लिन क्या बोला आपने? अनुशासन, अनुशासन फॉलो नहीं करते हैं। एंड व्हाट इज डिसिप्लिन? व्हाट इज एग्जैक्टली डिसिप्लिन? अगर आप आपस में बोल रहे हो क्या है डिसिप्लिन, ये समझ रहे हो, सोच रहे हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स। कुछ आप लोग सोच रहे होगे, ऐसा कुछ बोल रहे होगे कि डिसिप्लिन मतलब, अभी मेरे को डॉक्टर नम्रता बजाज ने बोला कि भैया टुडे देयर इज अ सेशन विद मिस्टर सुरेश गुप्ता, ही विल कम एट 11:30, प्लीज डू कम एट 11:30, इफ यू डोंट कम डंडा पड़ेगा। तो आपने एज ए प्रॉपर डिसिप्लिन, एज ए गुड स्टूडेंट, राइट एट 11:30 अब आगे, है ना। तो वो एक डिसिप्लिन, आप सोचते हो हम तो बड़े डिसिप्लिन है। अरे कॉलेज स्टार्ट्स एट 9:30 in the morning, nobody should come late, if anybody comes late we will stand outside and then this thing, तो हमने जो डंडे पड़ेंगे, साला बाहर खड़ा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो 9:30 आ गए, डिसिप्लिन। देन इन दी क्लास में टीचर आया तो बच्चों चुप बैठे रहो, बच्चों अब शोर मत करना, और कोई भी बाहर नहीं जाएगा जब तक कोई परमिशन नहीं लेगा, और आप वही फॉलो करते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। If that is what you think is discipline, then my dear friends, you are right, but you are fully not right. याद रखिए, डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती। हमेशा लाइफ में ये जो जितने भी डिसिप्लिन अभी मैंने बोले, ये सारे डिसिप्लिन दे आर फॉर पब्लिक,
they are for public. And here comes one of the habits of successful people out of 7 habits, which we were supposed to be speaking much, but some other time. Out of those 7 habits, one of the habits, Namrata ji and Pradeep, is this, that private victory and public victory. ये जो डिसिप्लिन हमने बात किया, ये हमने, आई रिपीट, इज फॉर पब्लिक. कि डॉक्टर नम्रता जी ने बोला कि 11:30 आना है, तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, नम्रता जी को दिखाने के लिए, प्रदीप जी को दिखाने के लिए, सुरेश गुप्ता, सारे आ गए 11:30. डिसिप्लिन हो गया, क्लास में डिसिप्लिन हो गया, सभी ने देखा तो डिसिप्लिन हो, सभी के सामने डिसिप्लिन हो गया. बट जैसे ही आप घर गए, जैसे ही वहां से हटे और आप घर गए, घर में आपको पता है कि भाई मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा 7 बजे से क्लास, तुम्हें घर में आके ना रेस्ट वेस्ट करके पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए. लेकिन वहां पे अरे मम्मी पापा ने बोला तो क्या है, देखी जाएगी. फिर नहीं, अभी पहले मैं एक टीवी देख लेता हूँ, अभी मैं पहले वो प्रोग्राम देख लेता हूँ, अभी मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ. तो किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 9 बजे, किसी दिन फ्रेंड्स के यहाँ चले गए, किसी दिन कुछ भी नहीं किया, और किसी दिन सो गए और काम खत्म, और कोई डिसिप्लिन कुछ फॉलो नहीं. एंड दैट इज नॉट अ डिसिप्लिन. यू अंडरस्टैंड? डिसिप्लिन जैसे कि आपने तय किया, अब आप आ गया प्राइवेट डिसिप्लिन, जहां पे कोई आपको देखता नहीं है. दैट इज प्राइवेट विक्ट्री. पब्लिक के लिए जो सभी, जिसको सबको पता चल जाता है, आई रिपीट, पब्लिक में जो सबको पता चल जाता है, प्राइवेट में जो किसी को पता नहीं चलता. किसको पता चलता है? सिर्फ स्व अनुशासन बोलते हैं सर उसको. अनुशासन. जैसे आपने बोला, वही है डिसिप्लिन. जैसे आपने अपने आप को, बहुत दफे होता है ना, जोश आया था, बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम देखा, उन्होंने योगा शोगा सिखाया, उन्होंने बात बोली कि देखो भैया, आप रोज सुबह 6 बजे उठ के ना ये योगा करो. या फिर किसी और ने सिखाया कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, मॉर्निंग वॉक इज नेसेसरी, तो 6 बजे उठ के रोज आधा घंटा सैर करो. तो उस दिन जब सुना, उस दिन तो जैसे ध्यान में आया कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है यार, करना चाहिए. तो अगले दिन जाएंगे. अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के चल पड़े और सैर करने चल पड़े. चले गए, खूब मजा आया, आधा घंटा से वापिस आ गए. फिर नेक्स्ट डे फिर चले गए. फिर जब तीसरा, चौथा, 5वां दिन आया, ऐसा, अरे छोड़ यार, भाई 6 बजे क्या, थोड़ा आज सो लेते हैं थोड़ी देर. फिर 9 बजे, फिर अगले दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म, किस्सा खत्म, फिर खत्म, कोई योगा नहीं, कोई कुछ नहीं. दैट इज काइंड ऑफ ए वेयर यू डू नॉट हैव ए डिसिप्लिन इन अ प्राइवेट. यू नो, इट इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे हम वहां जाते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाए, तो डेथ के टाइम पे वहां जाते हैं, शमशान घाट कभी साथ में चले गए. वहां चले गए तो वहां पे दीवारों पे लिखा होता है, यू नो, देखो तुम लोग क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, यू नो, सदा सच बोलो, कभी किसी को तंग मत करो, झूठ मत बोलो, कोई पाप मत करो, क्योंकि अंत तो तुम्हारा यही होने वाला है. तो वहां पे ये सब पढ़ने के बाद मन में आता है, अरे भैया, अभी तो आज के बाद तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, आज के बाद किसी से दुश्मनी नहीं करनी, सच, क्योंकि मन नहीं वाले. तो मन में बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाता है, सब कुछ पक्का हो जाता है कि यहां से निकलने के बाद कुछ नहीं करें. बट एज सुन एज वहां पे तो माहौल में रहा, दिमाग में सारा, जैसे ही वहां से बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही सामने ही कोई ऐसा बंदा आ गया, आपका दुश्मन, बस लड़ाई चालू, सब कुछ खत्म, किस्सा खत्म, सब भूल भुला गया. You know, that is not the discipline. That's not the determination. So, friends, I am trying to spend time on this. As I said, if you have those 4 Ds, that is, that you have that, you know, आपका, you know, that you want to win, आपका, you deserve करते हो आप उसको win करना, you know, आपका हक है. फिर आपकी इच्छा शक्ति है. फिर आपने दृढ़ संकल्प लिया, डिटरमिन किया, फिर आपने अपने आप को समर्पित भी कर दिया. लेकिन ये डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा, which is a private victory, you will not succeed. And now I tell you the definition of discipline. That actual discipline, जो my dear boys, friends, in your success life में कहीं भी
चाहे कॉलेज की हो, चाहे जॉब में जाओ, चाहे कहीं जाओ, जो आप तय करो करना है, जो आपको महसूस हो कि ये करने से ही सक्सेस मिलने वाली है या आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव होने वाला है, जो तय कर दिया, तो फिर आपको कोई देखे चाहे नहीं देखे चाहे कुछ भी, दैट इज ए प्राइवेट विक्ट्री यू विल हैव टू अचीव. उसमें जितना भी कष्ट हो, जितना भी तकलीफ हो, if the discipline says that every day morning at 6 o'clock you must get up, not even 6:01, and then you must spend half an hour in revising your books, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, चाहे आंधी तूफान बादल बिजली कुछ भी आ जाए, और कोई वहां पे हो ना हो, आप जंगल में हो, अकेले हो, और आपने अकेले तय किया हुआ है कि ये करना है, तो फिर आपको वो करना है तो करना है. In other words, discipline, real discipline is when nobody is watching you ever, but you have decided that this discipline in my life I will have to succeed. So you only will ensure that discipline is followed without any deviation. Then these 4 Ds of yours, added by this 5th discipline, will guarantee you the success. Make my word for it. But if you have the 4 Ds and you do not have the 5th D of this discipline, you will not succeed. That also you might. Okay, so let's come back to the next slide. Finally, once again. So gentlemen, therefore, you can see this man standing with lots of confidence with 5 Ds of winning formula. And if you all have understood, all have agreed, which I can see each one of you nodding like Pradeep and Dr. Navrata ji. And therefore, repeat along with me. Repeat, and then we'll close. You know that in order, bolo mere saath, sare jahan bhi ho, bolo. That in order to succeed in life, I have learned the secrets of my winning formula. And that is 5 Ds. And those 5 Ds I am going to imbibe in me as the true mantra of success. And I will follow those 5 Ds fully without any deviation in the same. So therefore, what are the 5 Ds? Please speak. I deserve to win. ऐसा करो, जहां भी आप लोग हो, जहां भी मुझे देख रहे हो, हाथ को ऐसे करो and tell yourself. Now you are telling these 5 Ds to yourself. बोलो मेरे साथ. I deserve to win. I deserve to win. I have the desire to win. I have the desire to win. I am determined to win. I am determined to win. I dedicate myself to win. I dedicate myself to win. And I will follow discipline to win. I will follow discipline to win. Yes, then I will definitely win. Boliye, then I will definitely win. And become the man or a woman. And become the person or woman. Which I am preparing to become. Which I am preparing to become. Yes. Thank you, Amin. And God bless you all. And I'm sure, friends, I wish once again I could have seen your body language, the reaction, but I can visualize through this third eye कि आप सब ने ऐसे ही जैसे डॉक्टर नम्रता ने और प्रदीप जी ने जोश में किया, आपने भी किया होगा और ये आप याद रखोगे. Please remind yourself. My request to Pradeep ji, please make a small cardboard or something of this thing and circulate to all your boys. Sure. Those boys who have attended today. Sure. And ask them to keep these 5 Ds of winning formula
in their diary, in their notebook, which they are keeping. Yes. This kind of card I will prepare and circulate. Give it to them. And I will request you, all the students, please keep it with you, not just for this college, for your life. This will help you succeed in your personal life. This will help you succeed in your professional life. May God bless you. May God help you become a big person which you desire. All of you desire to be. God bless you. All the best. सर सर 5 मिनट सिर्फ और सर 2 लेंगे मिनट आपका हमारे साथ और दीजिएगा। सर। स्टूडेंट्स थैंक यू भी बोलेंगे। मुझे लगा कि आप ऐसा ना मुझे बोल दो गुप्ता जी आपका टाइम हो गया। नहीं बोलिए सर अनशेयर करिए सर प्रदीप सर स्क्रीन। हाँ पीपीटी सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू भी बोल रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग बूस्ट अप सर। काफ़ी रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ में फैकल्टीज भी जो हैं वो वॉच कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज हैं तो उनका भी बहुत अच्छा रिएक्शन रहा है कि हम 5 डेज जो हैं अपने साथ हम रखेंगे और सभी लोग अपने डेस्क पे रखेंगे। प्रदीप सर हमें भी दीजिएगा, हम भी एज अ स्टूडेंट अभी भी लर्न कर रहे हैं। सर एक स्टूडेंट ने बोला है इट्स वंडरफुल एंड ऑसम सेशन। सर बहुत लोगों ने थैंक्स बोला है आपको एंड अमेजिंग बूस्ट अप। सर मेरा भी जो टेक अवे था मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, रिफ्लेक्ट करना चाहूंगी। सर सबसे बड़ा जो आपने जो बताया प्राइवेट विक्ट्री और पब्लिक के बीच का जो डिफरेंस था ये बड़ा बहुत ही मतलब मुझे लगा कि सच्ची बात है दिखावे के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, ये स्व के लिए है। वो मोटो जो है वो होना चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी वेल सेड। दूसरा सर जो इतना स्वीट विल से अगर हम डिसिप्लिन होते हैं अपनी विल से, स्वीट विल से और जिसमें हमें अच्छा लगे तो शायद ये सक्सेस दूर नहीं है। जो आपने हमारे फाउंडर चेयरमैन से चालू किया वो उनका हमने वेबसाइट पे भी रखा हुआ है। अच्छा वेरी गुड। सॉरी। उन्होंने ये कहा था कि अफोर्डेबल मेडिसिन टू ईच एंड एवरी। यस ये उनका एक जो समाज के प्रति उनका समर्पण था सबकी भलाई के लिए। जो आपने कहा ना कि एक जो है सिर्फ अपने लिए सक्सेस नहीं सबके लिए भी जो होए भाव होए, जो आज आपने हमारे से संकल्प करवाया 5 डी के बोल के, आज तक किसी स्पीकर ने हमसे नहीं करवाया। तो एक पूरी एनर्जी आ गई हमारे में भी कि हाँ वापस एक जोश जो बोलते हैं ना, एक होता है सुनना और एक होता है उसको बुलवाना, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स को भी बहुत स्टोर हुआ होगा। मेरे साथ डॉक्टर नम्रता, sorry for this thing, but let me tell you, I told you, nothing I talked is bookish. Nothing is, like somebody written on this thing. The 5 Ds is not a book thing. It's only, from the personal experience which you feel. And in my entire company, in our entire branded, on our every floor, on every place, you will see a big placard of this 5 Ds there. So that आते जाते हर एक को ये ऐसा reminder आना चाहिए कि these are the 5 things I should keep remembering in my life to become a very successful person. सर ये इंट्रिंसिक जो आपकी क्वालिटी है वो यहाँ रिफ्लेक्ट यहाँ महसूस हो रही है। और एक स्टूडेंट ने रिफ्लेक्ट किया है कि सर आप इंद्रशील यूनिवर्सिटी दोबारा आइए। मुझसे इनविटेशन के पहले बच्चों ने इनविटेशन आपको दे दिया है कि सर आप इंद्रशील यूनिवर्सिटी आइए और मैं डेफिनेटली 5 Ds को फॉलो करूंगा और जरूर सक्सेस होऊंगा। सर आपने आशीर्वाद भी दिया है, न केवल हमें शेयर किया है अपना सक्सेस मंत्र, लेकिन आपने हमें आशीर्वाद भी दिया है। और शायद इसीलिए ये टर्निंग पॉइंट रखा गया है कि जो एक्सपीरियंस जो निचोड़ है आपकी जिंदगी का वो हमारे साथ जब शेयर होता है तो शायद ये बुक के बियॉन्ड है। तो 4 वॉल के क्लासरूम्स में जो हम पढ़ाते हैं उससे बहुत बियॉन्ड है। तो कभी कभी ये बियॉन्ड का जो हम लोगों को मिल रहा है गिफ्ट, आई थिंक दैट इज वेरी इनवैल्यूएबल, इनक्रेडिबल सर। So thank you so much, sir. And I now pass on to Pradeep sir for his reflection and takeaway. Yeah, sure. I'm very happy, Dr. Namrata. I have not interacted with you earlier, but today, I think talking to you, if you are also interacting with your students, I have no idea what exactly you do, and if you are giving them lectures or whatever, I believe that your students are actually lucky to have you in good hands.
And सर आई एम लकी टू हैव ब्लेसिंग्स एंड विशेस फ्रॉम यू ऑल। yeah, और आपको yeah. एक बहुत अच्छा अचरज मैं बता रही हूँ सर, कि मैं कल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू फ्रेम हुई है, आपने जो बताई है वो पूरा उसी में वही है। तो अच्छा, हम, अरे, यस सर, सो बाय डिफॉल्ट जो है हमारे लीडर्स हमारे को बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही चीजें बताई जा रही है और हमें वो करिकुलम में चेंज करना है। yeah, sure. Very good. Thank you. Yeah, Pradeep bhai. या सर एक्चुअली जो आपने स्वानुशासन की बात की कि एक होता है सामाजिक अनुशासन, दूसरा होता है Yeah. स्वानुशासन। एक होता है दिखावे के लिए कि आपने बोला इसलिए करना है, Yeah. एक होता है जब खुद से। तो जब तक वो खुद वाली बात नहीं आएगी कि गब्बर को खुद गब्बर ही मार सकता है, तब तक वो कभी नहीं होगा सर। शोले मैंने 50 बार देखी है सर, कम से कम। अच्छा. और हर बार कुछ नया उसमें मैनेजमेंट मेरे को लेसन जरूर मिलता है उसको देख के, या हर बार उससे कोई नई लर्निंग जरूर होती है सर। तो जो Sure, आपने सर बोला स्वानुशासन वाला, सर हम भी ट्रेनिंग में वही एक फॉलो करते हैं। मैं कितना भी Very nice. पढ़ाऊंगा, कितना भी करूंगा, Yeah. जब तक उसको खुद से एहसास नहीं होगा उसको ये क्यों करना है या उसको ये क्यों चाहिए, तब तक वो कभी भी उसको करेगा नहीं। तो ये बिल्कुल उनके सर. अंदर से ही जगाना है। Yeah, दूसरा yeah. सर, मैं एक हमेशा ये सवाल पूछता हूँ हर एक पैनलिस्ट को, आज फिर पूछूंगा, मेरा फेवरेट सवाल है सर। Yeah, ये तो सफलता की बात हो गई कि 5 डेज ऑफ सक्सेस। अगर सर जीवन में असफलता आती है या नाकामी हाथ लगती है, तो आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज के युवा को सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि वो लोग असफलता सह नहीं पाते और ऐसे कदम उठाते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि बॉर्न विद गोल्डन स्पून होना एक चीज है, या जीवन में सफलता पाना एक चीज है। अगर सफलता नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, बाउंस बैक कैसा करना चाहिए, आपने अपनी लाइफ में कैसा किया सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। yeah. No, I think आपने बोलते हैं कि अपना एक सेंसिटिव कॉर्ड टच, ये क्वेश्चन पूछ के जी, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज जब हम बात करते हैं 5 Ds की, ये करेंगे वो करेंगे, 5 Ds फॉलो करेंगे, तो ये कोई बिल्कुल एक पत्थर का वो मील नहीं है, मील का पत्थर कि किया तो होगा ही होगा सक्सेस। क्योंकि जब आप किसी रास्ते में जाते हैं ना और उस तरफ जाते हैं, तो रास्ते में ठोकरें लगने के चांसेस बहुत हैं, और ठोकर लग के गिरना वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, गिर सकता है, लेकिन गिर के हिम्मत हार देना और फिर उठना नहीं, और फिर उठ के फिर से चलने की और भागने की कोशिश नहीं करना, वो एक हार है। इन अदर वर्ड्स के every one of us who have decided in my life I have to succeed and I will follow this 5D, do everything, we have to be prepared at the same time. Okay, on the way the journey is tough, on the way lot of difficulties we will have to face, on the way we will face failures, but they must not under any situation deter my goal, my determination in any of these 5Ds, because failure is a very, very important part of the final success, ultimate success. If you are not failing on the way, it is impossible that you will finally succeed, because then you are definitely going on some wrong path. Failure is an integral part, important path for the success. और जैसे मैंने बोला ठोकर लगेगी, लेकिन ठोकर लग के गिर गए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिर ही गए और आप बोले अब तो मैं गिर गया, मैं उठ ही नहीं सकता, ये रोना धोना चालू, और अब तो आगे नहीं चलना क्योंकि फिर से ठोकर लगेगी, तो क्या करना, then you will not succeed. लेकिन जो ठोकर लगी, in other words जो फेलियर हुआ, वो फेलियर से लेसन लेना इज इंपॉर्टेंट। ये अगेन आपने बोला अपनी लाइफ से बताइए, ये बताइए, you will not believe, before coming here I was having a session with one of the teams and we have launched a new division, perhaps you are aware or not, in Newgen, one new vision division, new team they वो लाया था, and in Newgen has succeeded a lot. From 40 crore they make it 400 crore. So we have launched another division for 11 months, we want to make it 200 crore. So we have a desire to make it. So I was talking, actually in the last 4 months we are planning to achieve something. We planned, we have fallen short. We planned, we have fallen short. But I was talking to them, the team, the same things. As I told you, touched my sensitive chord.
So this only team ko कि that we have decided you have not achieved less failure, but I am firmly of the belief that today or tomorrow, once we remain firm on the goal we want to achieve, we will succeed. और ये क्यों नहीं हुआ? Take some lessons out of this. Then draw some lessons. 1, 2, 3, 4. And in the next step, जब मैं फिर उठता हूँ, फिर चलने लगता हूँ, फिर भागने लगता हूँ, तो वो जो लेसन लिए, उन लेसन्स के ऊपर काम करेंगे. The next step will be more firmer. फिर आगे ठोकर लगने वाली होगी, तो हम पहले से ही अपना बचाव करेंगे, ठोकर नहीं लगने देंगे. फिर भी एक और कोई नई ठोकर लग सकती है, फिर एक लेसन लेंगे, फिर उसको आगे चलेंगे. लेकिन आगे बढ़ पाएंगे तभी if we remain focused, determined and clear about the goal we want to achieve, come what may. That's most important thing. I'm sure that no failure, no amount of failure in life can finally stop the success which ultimately we want to achieve, provided we have these 5 Ds imbibed thoroughly in us. That's what I would like to tell you, Pradeep ji, from the bottom of my heart. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. एंड आपसे सुनना सर ये एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है सर. एज ए एमआर से शुरू कर रहा, कितने लोग हैं जो एमआर से शुरू करके कंपनी के प्रेसिडेंट बन पाते हैं? हजारों लोग, लाखों लोग आपके समय से ज्वाइन किए होंगे और वो किसी भी पोस्ट पे पहुंचे होंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो प्रेसिडेंट बन पाए? तो आपके मुंह से सुनना एक अलग बात है. एडिसन के मुंह से सुनना कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 स्टेप में बल्ब बनाया, वो एक अलग चीज है, क्योंकि एडिसन को कभी मैं मिला नहीं, लेकिन मैं आपको मिल रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ. तो सर इसका एक अलग ही अनुभव होता है. सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रदीप सर. सर एक यश पटेल करके है, उन्होंने भी बोला है सर कि शोले मैंने 50 बार देखी है और आपका भी मैंने 50 नई लर्निंग सीखी है. तो सर एक बार और वेबिनार होगा ना, तो ये यश की है. एंड सर अब स्टूडेंट बॉडी का टर्न है, वो आपको थैंक्स करेंगे अपना. सो प्लीज अनम्यूट अनेरी प्रजापति. शी इज अ BSc स्टूडेंट. Okay. Yes, Aneri, you can unmute yourself. Good afternoon, sir. Myself, Aneri Prajapati. I would like to say thank you to Mr. Suresh Gupta for taking your time and sharing us how education is so important for students. To achieve success, we should have a strong determination. And as you said, dreams are so important. And you give example of the Cadila Pharmaceuticals, that from the scratch how Cadila Pharmaceuticals achieve huge success. And also thank you for explaining the 5 Ds of winning formula that are so helpful to us. Thank you so much again, sir. Thank you, Aneri. Aneri, your name, na? Aneri. Yes, sir. Anar wali Aneri. Yes, sir. Good. I am happy. I know I was telling that you guys are lucky to join university like Indrashil, where background of CAT, but now I am happy that Indrashil University have good students like you are speaking so well. Aneri, good. God bless you. Thank you so much, sir. God bless you and be successful. I'm sure. थैंक यू गुप्ता सर. एक्चुअली आप सबका भी रिक्वेस्ट तो आ ही गया है कि आपको दोबारा बुलाना है. और अभिनंदन सर बात नहीं कर पा रहे उनकी तबीयत की वजह से, लेकिन वो शुरू से कनेक्टेड ही है अभी तक. और मेरे कलीग हैं डॉक्टर सुमित चौधरी, और वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं पूरा ये सेटिंग करने के लिए, पैनल वगैरह के लिए, तो मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी. और सर जब आपने इंद्रवदन सर के साथ में काम किया है तो उनकी चॉइस हम देख रहे हैं बिल्कुल सही आई है, और उसका जो है हमें भी आज तक उसका प्रसाद मिल रहा है, उसकी लर्निंग सबको मिल रही है. थैंक यू सो मच सर. चलिए जी. ओके, थैंक यू सो मच सर. बाय बाय. सो नाइस ऑफ यू. ऑल द बेस्ट. बाय.